angle should be same. Should be same in the means? Should be same in the means? The position of angle may be changed. But if there are ABC angles and the value of ABC is 10, 20 and 50, then the same value would be in the same another angle. Got it or not? The second was which one? This one. If two triangles are similar, that means if this angle and this angle, and this side and this side, ratio of this side is basically length of this side. Ratio. We are not talking about the length. Length never be equal. If length is equal, then the triangle would be congruent, not the similar. So if the ratio of x upon y equal to 1 upon 2, then it should be mandatory that the ratio of a b would be 1 upon 2. The second condition. So the sides and the angle between these sides should be same. Angle should be same and ratio of sides should be same. Third was, what was third one? All the sides. Ratio of all the sides. Side. We are again talking about the ratio, not talking about the length. That was the condition of similarity that we have discussed yesterday. Now let's take some 2 to 3 questions based on similarity, and we are going to start some new topics. Guys, did we discuss the question after similarity or not? How many questions? 5. 5 questions we have discussed. One question only. After concept of similarity, how many questions we have discussed? One question only. Could you tell me the question? Okay. Guys, note down the second question. The second question is, in the figure, QA and PB, in the figure, QA and PB are perpendicular to AB. QA and PB are perpendicular to AB if AO is equal to 9 centimeter and BO is equal to 6 centimeter and BP is equal to 8 centimeter. Find QA. Your options are 13, 12, 15, 14 centimeter. What would be the answer?
डूइंग वेल भाई, 10-20 सेकंड में आंसर आ जाता है ज्योमेट्री। और अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब ऐसे मेरे को मैंने कुछ पढ़ाया है अभी, वो भी कल से क्लास हो गया तो 5-6 से लेकर 4 घंटे तक हमारा पड़ेगा सब। कम से कम 4 घंटे मान लो, तो अगर एक हफ्ते क्लास 4 घंटे हो गई मतलब 30-35 घंटे का एवरेज आ रहा है हफ्ते का, तो 2 हफ्ते का सिलेबस खत्म हो गया। तो मैडम पढ़ाएंगे आप लोग उस वाले बैच को 11 बजे वाले को, मैं पढ़ाऊँगा आप लोग, तो लगभग एक हफ्ते आपकी क्लास में उनकी बंद 11 बजे वाले एक हफ्ते मतलब कोई 30-35 घंटे 60-65 घंटे फोकस करना। 2 हफ्ते बाद अभी ज्योमेट्री बहुत बड़ा सेक्शन होता है, ज्योमेट्री के बाद ये क्या करना ट्रिग्नो, ट्रिग्नो के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो अभी बड़े बड़े चैप्टर बचेगा हैं। देखिए कैसे करेंगे गाइस, आप लोग को पता है कौन सा रूल लगाएंगे, सिमिलरिटी। कौन सा सिमिलरिटी, ये देखो ये कहा है कि ये परपेंडिकुलर, बेटा ध्यान दें, आदर्श सुजी, ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये यहाँ पे 90 बनाए, जो चीज 90 बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो AQ और AB क्वेश्चन में क्या है, परपेंडिकुलर, क्या करें परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 है, तो ये 90 नहीं। दूसरी चीज जब ये वाली आपको ये ट्रायंगल एंड लाइन एंड ट्रायंगल चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं, उसमें बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, कोई दो ऐसे लाइन खींच लो, ये वाले एंगल बराबर होता है हमेशा, मगर ये सारी की सारी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। इस हिसाब से ये वाला ट्रायंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के। गॉट इट। तो सपोज ये थीटा है तो ये भी थीटा हो, और ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सबका सब कितना चाहिए 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सारे एंगल का सम 180 होता है ना, होता है। तो अगर ये 90 प्लस थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, थीटा का 180, तो ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर सारे एंगल बराबर आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, सिमिलर। दैट इज so that condition is proved that the given triangles are similar. If given triangles are similar, then the ratio of corresponding side would be same. Ratio of corresponding side. We have asked QA. QA means that one. तो इसके corresponding कौन सी साइड, ये वाली बोलो ना यार। corresponding side would be the ratio of corresponding side would be same. So that is QA ratio PB would be, ये लाइन 90 क्या तो 90 क्या गई है, कौन सी OQ अपॉन, पहले इसकी लिखा था, इसकी में ये ध्यान रखना किसके पहले PO, और ये किसके बराबर होगा, ये AO और ये BO। बस ये होती है किसकी कंडीशन है, सिमिलरिटी। हमसे पूछा क्या लगता है बच्चे, ये पूछा है AQ, तो AQ हमसे पूछा है, हमें पता नहीं क्या है, और हमारे पास PB कितना दे रखा है, कुछ दे रखा है, B से लेकर B कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर का। अब आपके पास ये लेना है, ये लेना है, देखो कौन सा जो गिवन है, तो A और B और दे रखा है, तो ये ले लो, ये छोड़ दो। अब बोलो ना, जो दे रखा है उसको यूज कर लो, ये दे रखा हो तो बेटा तो इसका यूज कर लेते हैं, ये दे रखा है इसको यूज कर लो, इसका यूज कर लो। तो कितना है A और कितना है 9 और B और 6, कितना हो जाएगा 3 2 4, Q की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये These are the questions based on similarity. So first you need to prove similar triangle, then you can apply the basic fundamental of similar triangles. एक ही तो fundamental है, क्या है, the ratio of corresponding side would be equal. अरे एक ही तो fundamental है, वो तो नहीं है। Next question. ये सीरियल का क्वेश्चन है, अब सारे पेपर के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखो। If triangle ABC is similar, बेटा आपके पास प्रूफ करना है क्या, प्रूफ नहीं करना, ऑलरेडी गिवन। If triangle ABC is similar to triangle DEF, if triangle ABC is similar to triangle DEF such that angle A is equal to 47 degrees and angle E is equal to 63 degree. Sorry, 63 degree. Angle E is equal to 63 degree. Then angle C is equal to
Angle C is equal to your options are 40, 50, 60, 70. What would be angle C? What would be angle C? 70. I really appreciate. Amazing. You are doing well. We have given two what triangles. The first is ABC and the second is DF. Got it. We have given angle A 47, angle A 47 and angle E 63. If angle E 63, then must be angle C B would be 63. Got it? क्यों होगा मतलब ऐसा? क्यों होगा? नहीं होगा क्यों ऐसा? ये 63 मैंने क्यों लिख दिया? 63 मेरे पास E दे रखा था, मैंने ये कैसे लिख दिया? ये ऐसे लिख दिया बेटे। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल का सीधा मतलब होता है कि एक यहाँ पे 63 तो पूरे में एक 63 होगा। हम ये 63 हो सकता है। नहीं समझा? ये तो पढ़ा था कल, ये तो पढ़ा था। दोबारा 2 मिनट रिवीजन कर। क्या पढ़ा था? ये ट्रायंगल है। ये अगर यहाँ पे 10 है तो इसमें से कोई ये 10 होगा, ये 10 होगा, 100% होगा। ये क्या होगा? सिमिलर। ये जरूर नहीं है ये 10 होगा, ये जरूर नहीं है 10 होगा, ये तो पढ़ा था। और दूसरा क्या पढ़ा था? मान ये 80 है तो इसमें से कोई एक 80 होगा, ये 80 90 होगा, कि 90 होगा, ये 90 होगा। ये कंडीशन सारे सेम टाइम होगा, बट उनकी पोजीशन क्या हो सकती है? मैचिंग। तो एक बार बता, ये 63 तो इसमें से कोई एक 63 होगा, अपने मर्जी से किसी एक क्या मान लिया 63। तो इस दोनों सबका सम कितना है? 180। इन दोनों का जोड़ कितना है? 0। इन दोनों का जोड़ कितना है? 11 110। तो ये बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा? बस ये पूछो। हमें ये प्रूफ थोड़ी नहीं करना था क्या कि दोनों सिमिलर हैं। पहले से गिवन है सिमिलर है, तो बस हमें कंडीशन अप्लाई करके आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट इट डाउन। इन द गिवन फिगर AD is equal to 11 centimeter, AB is equal to 18 centimeter and AE is equal to 9 centimeter. Find EC. Your options are 14, 13, 12, 11. बेटा AD 11 है आपके लिए, AB 11 गिवन है, AB 18 गिवन है और AE 9 गिवन है। आपको निकालना EC क्या होगा? EC आपको निकालना। अब मैं एक फिगर बनाना है, फिगर दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी थोड़ी, फिगर तो गिवन होगा, गिवन फिगर किस बनना तो आप कोशिश करिए किस फिगर में ऐसा दे रखा है वो फिगर में आपने बनाना है। ये फिगर 57 है। बस करिए इतना ही।
देखिए गाइस कैसे करें. This angle is 57 and this is 123. How much that would be? 57. This is theta, if you will see in the bigger triangle, that means this is theta, in small this one, this is also theta. In smaller this is 50 cent and this is 57 in bigger one. If two angles of any triangle are same, then third would be by itself. If that means this means alpha, then that would be also alpha. That means triangle this ADE and triangle ABC must be similar. No, getting or not? मुझका नोट getting? इधर देखो 123 है तो 180 होता है ना पूरे एंगल 57 होगा. एक बार छोटे वाला ये वाला ट्रायंगल कोई बनते इधर छोटा वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल कितना है 57 और एक एंगल कितना है थीटा. बड़े वाले में बड़े वाले में इस वाले में बड़े वाले इस बड़े वाले में एक एंगल क्या बेटा थीटा और ये कितना है. तो बड़े वाले में दो एंगल वही है जो छोटे वाले में दो एंगल. इसमें 57 इसमें थीटा इसमें 57 इसमें थीटा. तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल किन्हीं दो अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा भी क्या होता है बराबर होता है. तो अगर ये अल्फा ये भी क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ ना फिर से इसका मतलब हुआ कि ADE किसके सिमिलर है ABC. बस अगर सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा. तो 57 के सामने यहाँ पे कौन आ रहा है बड़े में AC. 57 के सामने AC यहाँ 57 के सामने कौन सा है AD आ गया. यहाँ अल्फा के सामने कौन है AE. यहाँ बेटा अल्फा क्या कौन हो जाएगा AD पूरा ये पूरा बड़े वाले में. अब यहाँ 57 क्या है कौन सा है 57 हो गया था थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे कौन सा पहले कैसे लिया पहले छोटा लेना बड़ा लेना इस बड़ा ले लेना पहले बड़ा लेना फिर छोटा वाला ले लेंगे. यहाँ पे सही हो पहले बड़े वाले टाइम के ऊपर है तभी एक जैसे. तो बड़े वाले में AC किसके सामने 50 सॉरी AC कहाँ सा है ये वाला AC 57 के सामने AC है. यहाँ 57 के सामने क्या है AD. तो पहले बड़ा लेना फिर छोटे टाइम लेना. तो बड़ा ट्रायंगल कौन है थीटा. थीटा में क्या है AB BA BC और थीटा के सामने यहाँ पे छोटी वाली क्या है DE. अगला क्या हो जाएगा अल्फा. अल्फा के सामने बड़े वाले में क्या है AB और छोटे वाले में अल्फा क्या है A. अब इसमें ये देखे कौन कौन सा गिवन है. देख AD है तो AD कहाँ पे दे रखा है AD है और क्या दे रखा है AB कहाँ दे रखा है ये और AE ये है. इसका मतलब ये वाला छोड़ दे इसका कोई काम नहीं. कोई दो ही यूज करेगी तो एक छोड़ना पड़ेगा. अभी पिछले वाले ने छोड़ा तो ये यूज कर ले. तो AC कितना है हमें निकालना है नहीं निकालना AC गिवन है क्या AD गिवन है. अच्छा AC निकाल लो तो AC पता नहीं AD कितना है 11 और BC कितना है AB कितना है 18 और AE कितना है 9. तो कितना है बेटा 2. तो AC कितना है 22. AC को ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 22 है. अगर ये पूरा 22 और AE कितना था AE 9 तो ये कितना हो जाएगा 13. यही आंसर ये पूछा था. अरे यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा चीजें क्लियर हो गई. पेपर के क्वेश्चन है सारे एक भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे पेपर उठाए क्वेश्चन करा. सिमिलरिटी बेस कितने क्वेश्चन आए हैं कर लेंगे इजी है इतना टफ भी नहीं होना भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. लिखिए इन द गिवन फिगर. देखिए बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं आज के टाइम पे फिगर में आ रहा है. सारे के सारे क्वेश्चन अब कैसे आ रहे हैं लैंग्वेज बेस. मगर ये क्वेश्चन जो है वो मेंस का क्वेश्चन प्री का है. ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मेंस में पूछ लेते हैं. छोटा क्वेश्चन है बट मेंस में ये गिवन फिगर इन द गिवन फिगर if DE
upon BC is equal to 2 upon 3 and AE equal to 10. AE equal to 10. Find AB. AB आपको find करना है. Your options are 9, 8, 15, 10 centimeter. These are your options. एंगल बेटा ये ट्रायंगल मैं एंगल रोट लेते हैं. एंगल कौन सा गिवन ये हमें गिवन है 75 पेपर में मतलब फिगर में गिवन है. ये हमें गिवन है 100 बिल्कुल जैसे अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया. ये हमें दो एंगल गिवन है. दो एंगल गिवन फटाफट से सिमिलरिटी का रूल लगाना. ये सीधे दिया होगा. कॉपी पेस्ट है अभी नहीं करोगे. देखिए कैसे करें. ये 75 है थीटा है. ये भी कितना है 75. अच्छा ये देखिए क्वेश्चन इसका मतलब सही कर लो. इसको 80 कर लो. यही बचेगा. सॉरी भाई मैंने गलती किया माफी चाहता. वो यहाँ पे कितना लिखा है. यहाँ 75 में यहाँ 105 लिखा है. पेपर ठीक है. क्वेश्चन पेपर पे अब इसको आप फिर नहीं जा सकते. अब इसका कितना आंसर है. मेन आंसर सही. पहले देखो हेरिडिटी न्यू कॉन्सेप्ट ये खत्म हो गया. सिमिलरिटी में न्यू कॉन्सेप्ट है. देखिए क्या कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें. एक फिगर है इस तरीके से. ये फिगर एक लाइन है. बहुत समझना डायरेक्ट फार्मूला है. ये एक ट्रायंगल मान लो ABC. ऐसे मान लो ABC यहाँ पे दे रखा है और PQR ये है. अब आपको क्या गिवन होगा. क्या गिवन है मतलब गिवन ये है. ये क्लियर हो. देखिए क्या गिवन ये है कि ये जो AB है जो PA है ये पैरेलल है QB के और QB पैरेलल है RC. मतलब ये साइड इसके पैरेलल है. सारी साइड सीधी है. ये कंडीशन गिवन हो गया. तो क्या करना है. तीन साइड पैरेलल है. छोटी बड़ी हो सकती है सब करनी पड़ेगी इसलिए छोटी बड़ी बनाएंगे.
सबसे छोटी ये कंडीशन क्या है कि इसका टॉप इसके बॉटम और इसका टॉप इसके बॉटम। अगर ऐसा हो और इस साइड की लाइन x, इस साइड की लाइन y, इस साइड की लाइन z, मान लो सपोज करो तो एक फार्मूला लिखिए ऐसे क्या होगा। तो ऐसे में एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन होता है इसमें कि 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/, यानी कि बीच वाले का ये दो बड़ी वाली का सम बीच वाली के बराबर उल्टा, क्योंकि उल्टा है सीधा तो हो नहीं सकता बराबर, उल्टा है तो इसलिए नहीं समझ। ये एक रिलेशन x y 1/y बराबर होगा 1/x प्लस 1, यानी यहां से अगर y की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी xz अपॉन x प्लस z। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे क्वेश्चन आया इसको लिखिए। इतने पे इस फिगर के बेस आज तक क्या देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ दिस इज कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते टाइम पे आप अपना नोट्स बनाना है। यू हैव टू मेंशन द नोट्स कॉन्सेप्ट ओनली, यू कांट मेमोराइज द क्वेश्चंस बट यू कैन मेमोराइज द कॉन्सेप्ट। तो एक अभी जो भी आप नोट्स बनाना है आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करिए कॉन्सेप्ट्स के, और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जस्ट गो एंड प्रैक्टिस योर कॉन्सेप्ट ओनली। मल्टीपल टाइम्स आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, यू कांट रिवाइज द क्वेश्चंस। व्हाट इज इट? तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लिखना, कॉन्सेप्ट याद करना है। पूरी ज्योमेट्री के अंदर लगभग 100 कॉन्सेप्ट के आसपास कॉन्सेप्ट आएंगे, नो डाउट आएंगे 100 हो जाएंगे हर एक हो जाएंगे। हेलो हाँ कौन सी करते हैं अभी 3 बजे क्या हुआ, बात हुई? तो मैं अभी करता हूँ 3 बजे करता हूँ, फिर दूसरी क्लास है। कितने बजे तुम लोग ट्रेनिंग? अच्छा अच्छा, और ये कब पहुँच जाएगी अहमदाबाद? उधर से सर सुबह मतलब लखनऊ के लिए आओ। ठीक है मैं करता हूँ। हाँ देखिए कैसे कैसे करेंगे समझना। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए जितने लोगों ने पेपर निकाला उनके जितना जितना ज़्यादा पेपर निकालने वाले मुझे तो कुछ नया नहीं, उसको स्मार्ट ही खेलना। कॉन्सेप्ट बहुत है, अगर आप यूट्यूब पर चले जाओ हज़ारों कॉन्सेप्ट, इतनी बड़ी ज्योमेट्री को आते हैं 50-50 घंटे की दुनिया में क्वेश्चन, क्योंकि वो मेंस तक के क्वेश्चन होता है। हमें भी मेंस को टैकल नहीं करना, हमें भी प्री टैकल करना है। अभी जब प्री टैकल हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर तुमको पढ़ाना नहीं आएगा, खुद ही डॉक्यूमेंट्स पढ़ा। तो अभी प्री में क्या करना है आपको, प्री में क्या करना है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना ज्योमेट्री में, स्पेशली ज्योमेट्री। अगर ये टॉपिक होता है किसका, अर्थमेटिक का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना है। ज्योमेट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा बार रिवाइज करना है। क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन ईजी हैं, कॉन्सेप्ट टफ है। आप ध्यान दो, नहीं ध्यान दो, इसमें लैंग्वेज नहीं है, एहसास करो। ज्योमेट्री इजी है क्योंकि लैंग्वेज नहीं है, बट टफ क्यों मानी जाती है ज्योमेट्री? क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करते मल्टीपल टाइम, इसलिए वो स्टक कर जाता है। इसलिए उसको अपना कॉम्पिटिशन बहुत है, मतलब ज्योमेट्री बहुत है। बट ज्योमेट्री में इफ यू विल सी देयर इज नो सच काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, 4 to 5 lines are given. You will have to read the lines and you will have to get the conceptual part. You need not to take out the meaning of the given lines. A very simple question, a very simple language, a very simple figure is given. If you have the concept, you have the good command of your concept, within 30 seconds you can give the answer. So ये जो concept जो बार-बार लिखवाए जा रहे हैं, इनको एक पेज पे एक concept, एक पेज पे एक concept, एक पेज पे एक concept, बस आपको मल्टीपल टाइम concept रिवाइज करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे और हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, मगर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज में लैंग्वेज चेंज नहीं, क्वेश्चन चेंज होगा। यहाँ क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, बस क्या होता है लंबाई चौड़ाई होती है 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20 कौन सा है, लाइन उल्टी सीधी होती है। तो अब स्मार्ट नहीं करना आपको, हर यूनिट को पढ़ने का तरीका है। तो अभी के लिए
ज्योमेट्री को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको ये कि आपको कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हाईलाइट करना है अपने एक पेज पे। एक पेज पे एक फिगर बनाओ कलरफुल और उसका डेटा लिखो, ये डेटा लिखो, ये डेटा लिखो, एक पेज पे एक डेटा, फिर एक पेज पे एक डेटा। अब डेटा याद करना है तो हम कॉन्सेप्ट याद करना है। अगर तुम सोचो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हो जाए, लाखों क्वेश्चन नहीं करना, नहीं करना। तो एक दो क्वेश्चन और तुरंत कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, बाकी आपकी इच्छा कर सकते। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में किस देना है, आपके कॉन्सेप्ट से फार्मूले इन पे ध्यान देना, क्योंकि ज्योमेट्री में फार्मूला नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट है, लाइन ऑफ किसी की सीधी पैरेलल है, उल्टी सीधी नंबर पे क्या है। तो एक पेज पे एक कॉन्सेप्ट उसको कलरफुल बना दो, छाप दो, ताकि क्या है अटेंशन रहे और उसके नीचे दो क्वेश्चन काम करना। क्योंकि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, सेम हो, हर बार क्वेश्चन सेम हो, हर बार क्या करना है सिमिलरिटी प्रूफ करना है, सिमिलरिटी प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन तो कुछ रहेगा ही, मगर सिमिलरिटी प्रूफ कैसे करते हैं और सिमिलरिटी के प्रूफ होने का रूल क्या लगता है, बस ये बात याद रखना। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, बस ये बात याद रखना। आगे बड़ा क्वेश्चन होने का सकता है। तो हर यूनिट को पढ़ने का एक तरीका है, अर्थमेटिक को पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट है। उसमें मल्टीपल टाइम आपको मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फार्मूला नहीं है पूरे अर्थमेटिक में, कोई फार्मूला नहीं। कोई बता दे परसेंटेज का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है परसेंटेज, वो फार्मूला सबको इतना पता है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आती है, और कोई फार्मूला थोड़ी नहीं है। इसका मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन अगर हमने प्रैक्टिस कर लिए उतना ज़्यादा हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन हिट कर सकते हैं एग्जाम। मगर यहाँ फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं बनना। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि एक फार्मूला नहीं है, ऐसे कैसे कर जाती है उसकी फार्मूला 50 से 20 से 50 से फार्मूला है। अभी आएंगे इतने कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो जाएंगे तो तमाशा होगा का टास्क है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ना लगा के नंबर ऑफ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप देख रहे हो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फिगर पे दे रहे। देखिए मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ, मैंने सीखा है कि हर चैप्टर को पढ़ने का एक अलग अंदाज है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है हर चैप्टर को एक तरीके से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हर चैप्टर के क्रॉस कॉन्स अलग अलग है, हर चैप्टर के माइनस बिल्कुल अलग है, एस्पेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम एकदम जैसे अर्थमेटिक को पढ़ा वैसे एडवांस पढ़ा तो मतलब नहीं हो सकता। तो ज्योमेट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका अभी ये है, कॉन्सेप्ट मिस मत करो, एक पेज छूट जाए, बनी वाली हरकत में एक पेज छोड़कर लाइनें खींची तो उसके नीचे फिर से दूसरा मत डाल दो, तेरे नहीं होता बनी पेज तेरे लिए कोई नहीं बेटा, एक जनरल स्टेटमेंट बनी वाली हरकत नहीं करना कि इसमें इतनी इतनी कॉन्सेप्ट छोटी छोटी लाइनें इतनी दबा लगा कर छोटी 1 ग्राम जगह रहेगी 4 ग्राम कॉन्सेप्ट डाल दिए। देखिए कुछ लिखा भाई, क्वेश्चन क्या लिखा तो यार कॉन्सेप्ट लिखा, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन in a given figure AB is parallel to CD is parallel to PQ, AB is equal to 12, CD is equal to 18, AC is equal to 6. Then the value of PQ in centimeter. Options are 9, 14/5, 18/5, 36/5. अभी तो बताया यार अभी तो बताया था, एक सेकंड पहले ये फार्मूला लिखा, कई फार्मूला लिखा, बस कॉपी पे फार्मूला दिया है। फार्मूला इसमें क्या पूछा आपसे,
आपसे क्या पूछा है पी क्यू, और पी क्यू आप जानते हैं क्या होता है, ये जो दोनों साइड्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन अपन इनका एडिशन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन बोले तो ये साइड का मल्टीप्लिकेशन दे रखी कितनी है 12 इंटू वो वाली साइड कितनी सी डी 18, और नीचे भी दे रखा 12 प्लस 18। यार इसको सॉल्व नहीं करना मुझे क्या बता, यही तो करना था यार, अभी फार्मूला नहीं लिखा, ये लिखा नहीं इसका फार्मूला यार। वो जो दूसरी साइड दे रखी है वो तो घुमरा करने के लिए दे रखी है, हमें तो अपनी काम की चीज देनी चाहिए ना। वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है जगह, तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। तो जो भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर जरूरत थोड़ी हर एक चीज यूज हो जाए। तो द वैल्यू 6 सेंटीमीटर हैज बीन गिवन टू कंफ्यूज मेक यू कंफ्यूज। यार फार्मूला नहीं लगाना फिर लिखना। अब देखिए क्या है, कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहेगा ये सारी की सारी जो साइड्स हैं पैरेलल है। अब कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कब एप्लीकेबल होता है, ये फार्मूला केवल तब एप्लीकेबल जब ये साइड पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये साइड ऐसे तो नहीं होगा ना, बोलो बेटा। अगर ये CD अगर ऐसे चली जाती तो ये अप्लाई होता। दिस कॉन्सेप्ट अप्लाई ओनली व्हेन ऑल द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन विल नॉट से दैट द साइड्स आर ईच अदर, साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर या पैरेलल टू वन अनदर। देन हाउ विल टेक द क्वेश्चन या हाउ विल टेक द अप्रोच? द अप्रोच वुड बी द एग्जामिनर विल से देयर आर 2 poles or 3 poles and you know well about the poles. Poles are just parallel to one another or each other. So in most of the questions, examiner is not going to give the hint that AB is parallel to BC is parallel to CD. Then how will it take? How will it take? You will tackle the question by observing the language. This language is saying they are all poles, not trees. Then the basic fundamental of poles are each other parallel to each other. बिल्कुल सीधा ही पोल खड़ा होता है, ऐसा कोई पोल खड़ा हो ही नहीं सकता, बट पेड़ ऐसा हो सकता है। तो जानबूझ के वहां पे क्या लिख रहा हो पोल, ये 2 पोल हैं बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के क्या है पैरेलल, परपेंडिकुलर पैरेलल। I need not to say that these 2 poles are parallel to each other. If I am mentioning these are the poles, then I need not to mention parallel. Got it or not? The next question in which the poles are given but there is no line that describe that the poles are parallel to each other. So the question is given they are poles, then by default it is understood that they must be parallel to each other. Got it or not? The question is 2 poles of height 4 cm and 6 cm two poles of height 4 cm and 6 cm are 10 meter apart, are 10 cm apart, are 10 cm apart. The height of the point of intersection, the height of the point of intersection of the lines joining the top, of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is पूरा का पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। कहीं पे भी क्या नहीं दे रखा है, कहीं पे भी फिगर दे नहीं रखा। यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट योर ओन फिगर बाय योरसेल्फ। योर ऑप्शन आर 1 centimeter, 1.2, 2.4, 1.4, 2.4. I really appreciate. But you will see there is no figure has been given. The 100% language was question. So the language is saying there are 2 poles, one is 4 cm and another is 6 cm, and they are apart to each other 10 cm. They are apart to each other, and the language says 2 lines. The height of intersection point of 2 lines, which one top meet the foot of another, and the intersection height means that means
You will have to find that one. This time there is no figure given, and they would be parallel or not, it is also not given. But still you can take the idea because they are poles. So you know where the height of that one would be, AB would be multiplication of these two and addition of these two. Many times exam will place such kinds of code. Are you getting it? The next question. The last question from that concept. Then we will move on another process. Many times. Many times it would be, guys. Do you know these two lines and these two lines? These are parallel and these are not parallel. These are also parallel or not? They are also parallel. So it is not mandatory that two parallel lines should be vertical. They may be in a cross format and in a horizontal format. So many times the examiner will not construct such kinds of figure. That figure may be like that. Means lines may be crossed, not vertically all the time. हमें क्या पता? हमारी mandatory condition क्या है? They should be parallel, but doesn't mean they are horizontal, vertical or cross. Get it or not? बोलो ना. So such lines are called transversal line. Means थोड़ी सी तिरछी लाइन को transversal line. So they may be vertical, they may be horizontal, they may be transversal, but they must be parallel. Only then that formula, that concept can be applied. Are you getting it? Noted question. In the figure, अब की बार फिगर में क्या? In the figure, इस तरीके के पूरा फिगर कंडीशन वही है, मगर अब की बार लाइन कैसे डालनी है? वर्टिकली. इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि पैरेलल है या नहीं. इस बात से हमें फर्क पड़ता है कि ट्रांसवर्सल है या फिर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल. तो इन फिगर बी है AB is parallel to CD is parallel to EF. In figure B है AD is parallel to CD is parallel to EF. If AB is equal to 6 centimeter, CD is equal to X and EF is equal to 10, BD is equal to 4, DE is equal to Y, then calculate the value of X and Y. Again, check the question. In the figure we have AB parallel to CD parallel to DE for EF. If AB equal to 6, CD equal to X, EF equal to 10, BD equal to 4 and DE equal to Y, then calculate the value of X and Y. I am giving you guys BD. We will have to construct. मैंने इतना काम करना था, इसको ओपन नहीं करेंगे. क्या करें? उत्तर क्या करें? भारत की सबसे कमी शरीफ लड़की है AB इक्वल टू CD इक्वल टू EF. ये BD दिख नहीं है? हाँ, चेंज करा. मतलब वो वाली BD नहीं बेटा, सुधारने वाली ये कुछ BD हो रहे हैं. ये BD का पहले पढ़ लो. Your options guys, your options are x की वैल्यू पहले दे रखी है 2.75 and y इक्वल टू 7.76 and x इक्वल टू 3.75
and y equal to 6.67, x equal to 4.75, y equal to 5.67, x equal to 3.85, y equal to 7.55. बी ऑप्शन भारत का सबसे अच्छी क्वेश्चन है। रॉक स्टूडेंट आप इसका मतलब अब की बार इसमें कैसे क्वेश्चन देते हैं? दो दो दो, अरे बोलो ना, यानी कि अब की बार हमें अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा? दो फिगर पे अप्लाई करना पड़ेगा सेम टू। अरे बोलो ना, तभी तो आएगा आंसर, नहीं आएगा? एक से आएगा? स्मार्टली खेल रहे हो। स्मार्टली क्या खेलना है? केवल एक ऑप्शन से भी चेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि x की अगर तुम वैल्यू ऑब्जर्व करो, एक ही जगह है, x की वैल्यू क्या नहीं है, मैच नहीं हो रही है कहीं पे भी, एक ही आंसर आ जाएगा। वेरी स्मार्ट। अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या प्रूफ करते हैं? सिमिलरिटी अप्लाई करते हैं, सिमिलरिटी। तो मैं पूरा क्वेश्चन कराऊं? ठीक, लिखो। क्या करा दूं? मुझे ले रहा है। तुझे क्या हुआ भाई? हैं? आप कह रहे थे कि निकालना ये क्या हो रहा है? लिख लेकिन न्यू रूल, न्यू कॉन्सेप्ट। इन न्यू कॉन्सेप्ट guys, we have discussed, we have learned if two triangles are similar, then the ratio of corresponding side would be equal. Now you have to add one or two more points. What more points? Two triangles are similar to each other. The first condition would be ABC, PQR. The first condition would be the ratio of corresponding side would be equal. Corresponding side AB is corresponding to PQ and BC is corresponding to PR and AC is corresponding to. We have discussed, we have learned. But now the ratio that would be equal to the ratio of perimeter of these two triangles. Means इसका perimeter इसके perimeter में वही ratio होगा जो इनकी corresponding sides। Apart from perimeter, इनके ये इसको कहते हैं altitude। अगर यहाँ से altitude डालते तो 90 बनाए, altitude का भी वही ratio होगा जो इनकी sides का। इसके बाद अभी हम सीखेंगे एक जो triangle बनता है, ये जो triangle बनता है जो पूरे सर्कल के जो ट्रायंगल को अंदर कर लेता है, ऐसा सर्कल उसको कहते हैं सरकम सर्कल, और उसके रेडियस को कहते हैं सरकम रेडियस। अभी हम समझेंगे, अभी के लिए नहीं समझेंगे। और एक सर्कल जो अंदर बनता है उसको कहते हैं इन सर्कल, उसकी रेडियस कहते हैं इन सर्कल रेडियस। तो आपको क्या लिखना है कि पेरीमीटर में भी क्या रेशियो होगा? सेम। यही रेशियो किसमें होगा? मीडियन में मतलब क्या होता है? ये साइड, ये लाइन। यही रेशियो किसमें होगा? एल्टीट्यूड। यही रेशियो किसमें होगा? इन सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल रेडियस। और यही किसमें होगा? इन सर्कल रेडियस। ये इसमें और ऐड ऑन करना है, यानी सबका रेशियो है। अब हमें क्या गिवन होगा? क्वेश्चन कैसे गिवन होगा? हमें गिवन होगा टू ट्रायंगल्स, यार आदर्श छापना नहीं चाहिए। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड। एक सेकंड में आंसर करो। यू नीड नॉट टू सॉल्व, जस्ट मेमोराइज सम पॉइंट्स एंड हिट द क्वेश्चन विदाउट यूजिंग योर using a pen. Get it or not? इसको लिखिए। तो पेरीमीटर एंगल
मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एक ही और लिखते हैं ना, क्या है एंगल बाइसेक्टर हमने लिखा है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब बच्चे ये यहां से एक लाइन जा रही है तो इसके बीच में इस लाइन का रेशियो सेम है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अरे ज्योमेट्री आसान है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट फिंगर टिप पे रखना है। एक तो चैप्टर आएगा इंग्लिश हो सकता है 3D बट 2D इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल एबीसी बेटा क्या भारत की सबसे अच्छी भारत in triangle ABC and triangle DEF, it is being given that AB equal to 5 centimeter, BC equal to 4 centimeter, CA equal to 4.2 centimeter, DE equal to 10 centimeter, EF equal to 8 centimeter, and FD equal to 8.4 centimeter, FD equal to 8.4 centimeter if AB is, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, उल्टा टी, परपेंडिकुलर, if AL, इसका नाम L, AL जो परपेंडिकुलर, AL is perpendicular on BC and DN is perpendicular to EF, then what would be the ratio of AL ratio DN? Cousin. Amazing. I really like it. इनकी साइड का रेशियो कितना आएगा 1/2। तो ये इनके किसका होगा, परपेंडिकुलर का होगा, मीडियन का होगा। तो क्या दे रखा था आपको क्या दे रखा था, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल मान लो, एबीसी मान लो, और एक मान लो डीएफ। इसमें एक दे रखा था एल, एक दे रखा था एम। हमें ये इनका रेशियो निकालना था, इसका और इसका रेशियो निकालने के लिए हमारे लिए ए बी कितना दे रखा था बेटा, ए बी 5 और डी, अच्छा इसको उल्टा बना सकते हैं, चलो इसको 10 कर, और इसको कंसीडर क्या करना था, छोटा बड़ा, और इसको क्या देना था, ए सी 4.2 और ये 8.4 और ये 4 और ये। तो तुमने देखा इन दोनों का रेशियो 1:2 और इनका 1:2 और इनका 1:2। तो सारी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1:1:1:1 आ रहा है। तो किसका रेशियो 1:2 आएगा, परपेंडिकुलर का रेशियो 1:2 आएगा, परपेंडिकुलर।
चीज कर लेंगे नहीं कर लेंगे भारत का सबसे अच्छा करिए मतलब एक नहीं है भारत का सबसे अच्छा देखो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ triangle ABC and triangle DEF are similar such that AB equal to 5 centimeter, BC equal to 6 centimeter, DE equal to 7.5 centimeter, and DF equal to 10.5 centimeter. Then find the perimeter of triangle ABC. Then find the perimeter of triangle ABC. Your options are find the perimeter of triangle ABC. Your options are 15, 18, 21, 24. 15, 18, 21, 24. कुछ और पूछा बेटा कुछ और निकालो साइड में देखिए बोल दे ऑप्शन बेटा कुछ आएगा आप लिख लीजिए 15, 18, 21, 24 वेरी गजब तो देखो क्या दे रखा है दो ट्रायंगल है बेटा एबीसी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है डीईएफ दोनों ट्रायंगल में क्या दे रखा है साइड्स बताइए बराबर से देखो बराबर साइड कितनी एबी कितनी है तूने लिखा नहीं क्या दोबारा पूछता है तुझे तो दोबारा नहीं पूछ सकता था लिखा नहीं आता एबी कितनी है ये 5 है फिर BC 6 और D 7.5 और DF दोबारा ये कितनी देर की DF कितनी है 10.5 और देखो हमें ABC का क्या निकालना है पेरीमीटर तो बेटा पेरीमीटर की साइड होगी तो समझिए तो ये साइड और पता लगे आंसर आ जाएगा तो ये साइड पता लगाने के लिए क्या लगाना आपको सिमिलरिटी ये दोनों क्या है कैरेक्टर सिमिलर है पहले क्वेश्चन में कैरेक्टर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड है इसकी AB की अपॉन में क्या जाएगा D और इसके AC के अपॉन में क्या जाएगा DF तो AB कितनी है 5 DE कितनी है 7.5 AC कितनी है X और DF कितनी है 10.5 सॉल्व करो 5 10.5 अपॉन 7.5 काटो भाई 15 पंजे 75 15 7 105 5 से 5 काटो तो x की वैल्यू 1 7 और x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो जोड़ लो 13 और 5 आता ये पूछा था पेरीमीटर तो सम होता है पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स ऑल द साइड्स क्या दिक्कत आ रही है भाई आपको नहीं हो रहा क्वेश्चन बारिश क्यों नहीं बाहर बच्चे हैं क्या करें मुक्ता पहले से खुश रहने लगी पहले बहुत उदास रहती मुक्ता तो एक कम हो गए जिंदगी अभी उसके साथ आती थी वो भारी बंद लड़की कौन ढिंडो हाँ 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 उसका एक पैर मुक्ता 15 फुट निकल जाएगी भाई इतनी खतरनाक मैं कह रहा जहर खा लो जहर और यार मौसा बोले मौसा चलिए सर कह रहा जहर खा लो और हमको जहर दें तो मैं नहीं कहूँ आप खा लो ऐसे लेके ऐसे बोल मतलब ऐसा बोले कि भाई साहब थपड़ा दो चलो मुझे बचाओ
ठीक मानो नहीं है, टाइम नहीं पाता। देखो इन पेरीमीटर ऑफ टू, इन पेरीमीटर, आपके पास पेरीमीटर है, इन पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, इन अरे बैक टू बैक, इन पेरीमीटर ऑफ two similar triangles are, in perimeter of two similar triangles are 25 and 15 centimeter respectively. Guys, this time perimeter is given. This time perimeter is given. Again I am going to repeat. In perimeter of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of first triangle is 9 centimeter, if one side of first triangle is 9 centimeter, what is the corresponding side of the other triangle? What is the corresponding side of other triangle? Your options are 6.4, 5.4, 4.2, 5.8. 5 point? Very nice. Amazing. If you have a good command on concept, question are very easy. You can't say कि भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। Guys, क्या कंडीशन दे रखी है? You need to apply. The condition is the perimeter of two triangles are कितने? 25, यानी कि पहले वाले का 25 है तो दूसरे वाले का 15, क्या पेरीमीटर? पेरीमीटर का क्या ले रेशियो? तो रेशियो वुड बी 5 and 3, 5 and 3. So whatever the ratio would be in the perimeter of the triangle, the same ratio would be in the corresponding side of the triangle, because both the triangles are similar, and this is the basic or mandatory rule of fundamental of similar triangles. Got it? And the first side is given 9 centimeter. That means 5 unit is representing 9 centimeter. 1 unit is going to be represent how much? 5, 1 is 5. Then 4.8. The value of 1 unit is अजय किससे बात करना? हेलो, हैं? हाँ हाँ, चलो ठीक। तो गाइस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1.8 और आपको बेटा कितनी यूनिट की वैल्यू मिला? 4.5 नहीं समझा? क्लियर हो? तो दैट वाज योर similarity based question, but I'm not too much satisfied because I'm not giving too much time to you, the enough time that I need to you. So from Monday or Tuesday onwards, not Monday, Tuesday, madam will come on Tuesday. She will take the class on Tuesday. Not Monday is off. She is not going to take the class. अच्छा यार, I myself from Tuesday we will take 3 to 4 hours class per day geometry with